Hi everyone. So today's topic is cell, the unit of life. Cell, the unit of life. Okay. Now coming to the introduction part. So what is cell? So cell is the structural and functional unit of a living body. Many cell group together to form tissue. Many tissue group together to form organ, and many organ group together to form organ system, and many organ system group together and coordinate to form a living body. सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से आपका बॉडी. देन हिस्ट्री. What is the history of the cell? So Robert Hooke discovered the cell in 1665. Robert Hooke discovered Robert Hooke discovered the cell in 1665. He gave the name of his discovery cells, which means a small room in Latin. Anton von Leeuwenhoek first saw a described a live cell. A live cell. In 1883, Robert Brown later discovered nucleus. Then coming to the cell theory. Cell theory was jointly put forward by Matthias Jacob Sliden and Theodor Schwann in 1839. Rudolf Virchow 1855 first explained the cell divide and a new cell are formed from pre-existing cell. Rudolf Virchow 1855 first explained that cell divide, new cells are formed from pre-existing cell. Now, types of cell: prokaryotic, eukaryotic. The cells of the living kingdom may be divided into two categories. The cells of the living kingdom may be divided into two categories. First one is your prokaryotes. Second one is your eukaryotes. Difference between prokaryotes and eukaryotic cell. First one column is known as your size. Second one column is designated as prokaryotic cell, and third column is designated as eukaryotic cell. So one by one we read it. First of all, we read about the size of a prokaryotic cell. Size of a prokaryotic cell is generally small. Generally, what is the measure? That is 1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर. प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है, एंड ये जनरली कितना होता है? 1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक ये होता है. किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में. बट यूकैरियोटिक सेल में कितना होता है? यूकैरियोटिक सेल में उसका जो साइज होता है वो जनरली लार्ज होता है, एंड ये जनरली 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है. 100 माइक्रोमीटर. ओके. सो नाउ कमिंग टू द cell membrane. So what is the cell membrane in prokaryotic cell as well as in eukaryotic cell? So in prokaryotic cell the cell membrane is, so cell is involved by a rigid cell wall. Cell is enveloped by a rigid cell wall. Cell is involved by a flexible plasma membrane. Now subcellular organelle. In prokaryotic cell, subcellular organelle is absent, but in eukaryotic cell, distinct organelle are found. Example, mitochondria. In eukaryotic cell आपका क्या होगा? डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेल आर फाउंड. दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा,
लाइसोसोम्स रहेगा, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा। नाउ न्यूक्लियस, कमिंग टू द न्यूक्लियस वाला पार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड। डीएनए इज फाउंड एज न्यूक्लियाइड्स हिस्टोन आर एब्सेंट। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन आर एब्सेंट, हिस्टोन इसमें नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नहीं होता है। अगर हम न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे, नाउ यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, इसमें सराउंड होगा। डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन, डीएनए एसोसिएटेड होता है हिस्टोन के साथ। नाउ उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म, उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट प्रोकैरियोटिक सेल में। एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाउंड टू द मेम्ब्रेन, एंजाइम of energy metabolism are located in mitochondria। ठीक है, एंड उसका सेल डिवीजन कैसा होगा, सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यूजुअली फिजन, नो माइटोसिस। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा। देन साइटोप्लाज्म अगर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा कि ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन एब्सेंट। नाउ यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, कंटेन्स ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन, दैट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल एंड फिलामेंट्स। नाउ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आपका एब्सेंट रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। देन राइबोसोम क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का क्या उसका मीनिंग रहेगा कि 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये जीपैट 2018 में भी ये आया था। देन ओवरव्यू ऑफ द सेल। सो सेल इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट। सेल आपका जो होता है, सेल इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट। ठीक है, सेल दो मेजर पार्ट को मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसको बोलोगे, आउटर सरफेस ऑफ द सेल, सेल का जो बाहरी हिस्सा होता है वो जनरली बाहरी हिस्सा, लेकिन सरफेस मतलब आपका पृष्ठ प्रदेश जो होता है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। देन साइटोप्लाज्म किसको बोला जाता है, कॉन्टेन्स स्मॉलर कंपोनेंट कॉल्ड एज ग्रैन्यूल्स, contain smaller component called as granules बोल रहा हूँ, sorry for that, that is known as organelles। okay, then cell ये जो मेजर होता है इसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो हम देखेंगे। सो सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। देन उसके बाद सेल के पास साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल के पास ऑर्गेनेल्स भी होता है। ठीक है, एंड सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है एंड सेल वॉल भी होता है। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या होता है, डेंस स्ट्रक्चर कंटेनिंग क्रोमोजोमिन व्हिच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, इन व्हिच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। सो न्यूक्लियस क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन करता है क्रोमोजोमिन। ठीक है, इन व्हिच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। देन साइटोप्लाज्म की अगर देखेंगे, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सो साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के जितने भी वॉल्यूम है वो ऑक्युपाई करता है। देन ऑर्गेनेल की अगर हम बात देखेंगे तो ऑर्गेनेल अगर देखेंगे तो ऑर्गेनेल हमारे पास दो होगा, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एंड एक होता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। अगेन मेम्ब्रेन बाउंड अगर ऑर्गेनेल हम देखेंगे तो ये
प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन वही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आपके यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट भी होता है। देन अगर मेम्ब्रेन लेस की अगर हम बात करेंगे तो मेम्ब्रेन लेस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, ओनली आपका राइबोसोम वाला पार्ट में प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल कहाँ पर, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है एंड सेंट्रोसोम में भी आपका प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, आपका हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनेल्स के ऊपर डिटेल में स्टडी कर लिया एंड रीडिंग कर लिया। नाउ कमिंग टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये कोई कहने की बात नहीं है। तो ये लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दूसरा होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, व्हिच डेलिमिट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नाउ अगेन सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेल वॉल। सो सेल वॉल जनरली कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, सेल वॉल किसको बोला जाता है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर बाउंड्री होता है उसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सो जब तक हम सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सेल वॉल जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आउटर बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का आउटर बाउंड्री कौन है, सेल वॉल है। एंड व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, सो सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, व्हिच डेलिमिट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नाउ ये जो आउटर बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है इसी को सेल वॉल बोला जाता है। तो सेल वॉल कहाँ पर पाया जाता है, सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में आपका सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म अगर इसकी बात करेंगे, सो ये क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। सो इसी साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि सेल ऑर्गेनेल्स लाइक, सेल ऑर्गेनेल अगर हम देखेंगे तो सेल ऑर्गेनेल में आपका न्यूक्लियस भी आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोसोम्स all are included in cell organelle. So cell organelle, cell organelles, सेल और ऑर्गेनेल्स कहने का क्या मतलब है, अगर पूछा जाएगा सेल ऑर्गेनेल, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल, सो न्यूक्लियस हो गया आपका सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोसोम्स, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, ठीक है। सो आई होप आज का हमारा रीडिंग सेशन कंप्लीट हो गया। ये सारा चीज़ मैंने आई थिंक सब कवर अप कर दिया। Thanks for watching.